فاطمہ آپ شروع کرو بیٹا سورہ کے نام کے ساتھ. سورة التغابن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر یہاں پر ایک پراپر طریقے سے کرو. فمنكم كافر كافر یرملون ہے ٹھیک ہے یرملون بھی پورا صحیح سے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صاد کو پور کر کے پڑھو بصیر. اوکے بصير. اوکے ہنا 2 ایٹس. بصير سوچیے اسکرین پہ دیکھ کے پڑھنا. اوکے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن فا ہے واو نہیں ہے. فأحسن صوركم. یہ کیا لیٹر ہے؟ صاد صوركم صاد صوركم وإليه المصير. مصیر وإليه المصير. يعلم ما في جھٹکا نہیں دینا ہے. السماوات ویٹ جھٹکا نہیں دینا ہے ٹھیک ہے. یعلم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. اوکے نوٹ کر لیجیے. اوکے نور اینڈ نبی. بسم الله. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كان کل ہم نے اس پہ بات کی تھی نا کہ اسٹریچ نہیں کرنا ہے کوئی بھی حرکت والے لیٹرز کو. فتح دمہ کسرہ بہت دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ میں نے نوٹ کیا آپ کا فتح دمہ کسرہ بہت زیادہ اسٹریچ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے. اس کو بالکل بھی اسٹریچ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے. جہاں اسٹینڈنگ فتح دمہ اسٹینڈنگ فتح ہے یا کسرہ یا دمہ پھر اس کو اسٹریچ کرنا ہے لیکن ایسے جو سمپل فتح دمہ کسرہ اس کو اسٹریچ نہیں کرنا ٹھیک ہے. بِأَنَّهُ نون مشدد کی وجہ سے اسٹریچ کرنا ہے لیکن یہ حمزہ اور یہ نون کے اوپر صرف فتحہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اسٹریچ نہیں کرنا. با کے اوپر بھی کسرہ ہے تو اسٹریچ نہیں کرنا. بِأَنَّهُ كانت اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. یہ تو الف مدہ ہے ٹھیک ہے اس کو تو کھینچنا ہے. کانت تا یہاں پر حمزہ کے اوپر ساکن آ رہا ہے تو یہاں جھٹکا دیں گے ٹھیک ہے. کانت تأتیہم نہیں اس کو الف جس لیٹرز کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا اس کو ایک انگلی کھولو اور بند کرو ٹھیک ہے. اوپن یور ون فنگر اینڈ کلوز. اوکے سو اٹ ول ہیلپ یو ٹو اسٹریچ. اوکے لیٹس سپوز فذاقوا so open and close your finger okay wherever you see this alif. Okay اچھا کیا sorry
كانت تأتيهم رسلهم One minute. See, this seen is again harkat, okay? Seen is أچھا not standing, there is no standing dhamma here. This is a standing dhamma. So you will stretch this. But this is not a standing dhamma, okay? So, rusuluhum. رسلهم This is only, this is harkat, this is harkat, this is harkat, this is harkat as well, okay? So, we will not stretch anything, okay? No madar, no stretch. तेजी से पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे हरकत है, जहाँ फतह दम्मा कसरा है, उन लफ्जों को बस तेजी से पढ़ के निकल जाते हैं, तो रुकते नहीं है. रुसुलुहुम. ठीक है رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا 1 मिनट. यहाँ पर इदगाम करना है तन्वीन, और तन्वीन के बाद हुर्फ यरमलून, ठीक है? या रा मीम लाम वाव नून, इन 6 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आएगा तन्वीन के बाद तो हम यरमलून करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमें खींचना है अबशरुई. أبشر يأتوننا فكفروا है ना? ننا ना. वेरी गुड. तेजी से पढ़ के निकल जाओ. जहाँ जहाँ पे अलिफ नहीं किसी के साथ अटैच है और सिर्फ फतह धम्मा कसरा है किसी लेटर पे, उसको बस तेजी से पढ़ देना है, क्योंकि वो दम्मा वो मद्दा नहीं है, ठीक है? ठीक है यहदूनना. يأتوننا فكفروا وتولوا ولو واستغنى الله والله हाँ, कल भी हमने इससे बात की थी ना. यहाँ क्या करना है? والله स्ट्रेच भी करना स्ट्रेच भी करना है क्योंकि स्टैंडिंग पता है, लेकिन इसको फैट करना है, ठीक है? इसको लाम जलाला कहते हैं. जब अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो हम उस लाम को मोटा पढ़ते हैं, ठीक है? चाहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला वहां पर आए, या सुबहानक अल्लाहुम्मा वहां पर आए, या कहीं सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ हो, या लिल्लाह लिखा हुआ हो, तो लिल्लाह में कसरा है तो हम मोटा नहीं करेंगे. बाकी चाहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़े या हम सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े, ठीक है? जहाँ जहाँ अल्लाह के नाम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं. कभी सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ आएगा, कभी सुबहानक अल्लाह आएगा, ठीक है? कहीं पे अल्लाहुम्मा के, अल्लाहुम्मा अल्लाह तो नहीं है ना, लेकिन वो अल्लाह उसमें मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है? अल्लाहुम्मा, तो वो लाम हम जलाला पुर करके पढ़ते हैं, ठीक है? उर्दू में कहते हैं उसको पुर करके पढ़ना. इंग्लिश में हम कहते हैं फैट करेंगे, लेकिन उर्दू में उसको कहते हैं पुर करके पढ़ना, ठीक है? वल्लाहु. ठीक والله غني حميد अल्हम्दुलिल्लाह. ओके नबीहा. Okay. Za'amal kafaru नहीं. allan वेट yub'asu. हिना, 1 मिनट रुक जाओ. नबीहा, आर यू देयर? जी आई एम हियर. ओके, ऑलराइट. ओके, इट्स योर टर्न. ओके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. अल्हम्दुलिल्लाह. वन मोर आया. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah. So our lesson was till ayat 9, right? Yes. Okay, right. Okay, Fatima, your turn. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. मद्दा. تغابن. बून वाव थोड़ी है यहाँ पर. تغابني. और स्टॉप करेंगे तो बून. बून नहीं. वाव कैसे आ गया यहाँ पर स्टॉप करते हुए?
स्टॉप का रूल क्या है? याद है स्टॉप का रूल क्या तो है? एक सेकेंड, मैं जरा no. एक सेकेंड रुको, मैं माउस अटैच करूं तो मैं ड्रॉ करके बताऊं। ये देखो, जब हम स्टॉप करते हैं तो हम साइन को हटा देते हैं ना, और यहाँ पर साकिन लगा देते हैं। ठीक है, अब स्टॉप में क्या बनेगा? बा नून पेश बुन बुन, तो क्या होगा स्टॉप? तगबुन। बस ये सिंपल रूल याद रखना है, ठीक है। हमने यहाँ से साइन को हटाना होता है और हमने साकिन लगाना होता है फतहा दमा कसरा में, ठीक है। फतहा दमा कसरा का स्टॉप ऐसे ही बनता है, ठीक है। तनवीन का फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि तनवीन में थोड़ा सा कुछ लेटर्स में चेंज है। जैसे अगर हम यहाँ स्टॉप करते हैं तो फिर ये सेम है, ये सबके लिए, ओके, सबने ध्यान से सुना। जब हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं तो इसको हमने हटाया, यहाँ पे हमने साकिन लगा दिया, जन्नत, ठीक है। अगर कहीं पर दम्मा है, दो दम्मा, हमने इसको हटाया और इसकी जगह में हमने साकिन लगा दिया, यसीरुन यसीर, जन्नातिन जन्नात, तगोबुनी तगोबुन, ठीक है। लेकिन सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या होता है कि जब किसी लफ्ज के आखिर में अगर कोई लफ्ज एंड हो रहा है डबल फतहा के ऊपर, ठीक है, अगर इफ एनी लेटर लाइक वो डबल फतहा पे एंड हो रहा है, तो हम उसके दोनों साइन रिमूव नहीं करते। हमने यहाँ पे दोनों रिमूव किए थे, यहाँ पे भी दोनों रिमूव किए थे, राइट। लेकिन हम डबल फतहा में दोनों रिमूव नहीं करते। डबल फतहा में हम सिर्फ एक को रिमूव करते हैं और कोई साकिन नहीं लगाते, ठीक है। तो हा अलिफ ज़बर हा, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सालिहन सालिहा, ठीक है। ये फर्क होता है जब हम डबल फतहा पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। डबल फतहा के ऊपर हमेशा एक साइन हटा देते हैं, अलिफ हो या अलिफ नहीं हो, ठीक है। इफ यू आर वॉचिंग अलिफ और इफ यू आर नॉट वॉचिंग अलिफ, ओके, इन बोथ केसेस में हमने सिर्फ इतना करना होता है कि हमने एक फतहा हटाना है, एक फतहा रहने देना है। अलिफ है या अलिफ लगा हुआ नहीं है, हमें स्टॉप करते वक्त नॉर्मली अलिफ होता है, लेकिन रूल अलिफ की वजह से नहीं है। रूल है कि एक फतहा हटाना है, एक को रहने देना है, और फिर हमें स्टॉप करते वक्त इस अलिफ को पढ़ना होता है, ठीक है, डबल फतहा के केस में। सॉलिहन सॉलिहा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लफ्ज साकिन पे एंड हो रहा है, वो ऑलरेडी साकिन है, ठीक है, तो आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अब देखें, ये ऑलरेडी रा के ऊपर एंड हो रहा है, और रा के ऊपर ना फतहा ना दम्मा ना कसरा ना डबल फतहा ना डबल दम्मा ना डबल कसरा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने इस साकिन को ऐसे ही रहने देना है, योका फिर, इसका स्टॉप भी क्या बनेगा? योका फिर, ठीक है। यहाँ पर साकिन पर एंड हो रहा है, ठीक है, यजमउकुम, अब एंड ही साकिन पर हो रहा है, तो हम हटाएं किस साइन को और वहां साकिन कैसे लाएं? तो यही इसका स्टॉप होगा, यजमउकुम। अल्लज़ी ऑलरेडी साकिन है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यही उसका स्टॉप भी होगा, अल्लज़ी। मगर यहाँ पर क्योंकि डबल फतहा है, तो डबल फतहा में हम सिर्फ एक फतहा को रिमूव करते हैं और फिर इसको अलिफ के साथ मिलाकर स्टॉप कर देते हैं, अबदन अबदा, ठीक है। बाकी सब में यही रूल है। बी आयातीना, तो यहाँ पर ऑलरेडी अलिफ है, और जिनके एंड में अलिफ होता है हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं हटाना, क्योंकि अलिफ पे तो कोई साइन नहीं है, ना फतहा ना दम्मा ना कसरा, के हम उसको हटा के यहाँ साकिन लगाते हैं। तो इसका स्टॉप भी यही होगा, बी आयातीना, बी आयातीना, स्टॉप भी यही होगा, ठीक है। बाकी सब में स्टॉप डिफरेंट हो जाता है। इसको हटाएंगे, यहाँ साकिन लगा देंगे, उलाइका उलाइक, अस्हाबु अस्हाब, अन्नारी अन्नार, खालिदीना खालिदीन, यहाँ पे हटाया इसको और साकिन लगा दिया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अलिफ है,
تو جن میں الف ہوتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کرتے، کیونکہ الف سے کیا ہٹائیں گے، الف کے اوپر تو کوئی نہ فتح ہے نہ دمہ نہ کسرہ، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کچھ ہٹائیں گے ہی نہیں، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فیہا تو کچھ بھی نہیں ہٹائیں گے، فیہا ایسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئی سارے سائنس کی بات، ٹھیک ہے. فتح دمہ کسرہ، اگر اس طرح کے لیٹرز آ رہے ہو، ڈبل فتح ڈبل کسرہ ڈبل دمہ. ساکن آتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ساکن کے اندر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. اب بات کرتے ہیں اگر آخر میں ہا پہ اسٹاپ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے. اگر آخر میں ہا پہ اسٹاپ ہو رہا ہو، سیم رول کر دیتے ہیں، ہم سائن کو ہٹاتے ہیں، اس پہ ساکن لگاتے ہیں، اور اب اس کو لام حاضے لی، ٹھیک ہے، ورسولی، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ہم دیکھیں قلبہ، یہ ہم نے ہٹایا یہاں سے، یہ ہم نے ہٹایا یہاں سے سائن، اور اس کی جگہ ہم نے ساکن لگایا، ٹھیک ہے. قلبہ قلبہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر لیٹ سپوز یہ تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الصلاۃ و تن، ٹھیک ہے، تن. تو جب کوئی لیٹر ہا پہ اینڈ ہوتا ہے تو ہم نے سیکھا کہ ہم اس کے اوپر سے ساکن لگا دیتے ہیں اس کی سائن ہٹا کر، لیکن جب تا کے ڈاٹس بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی ریموو کرنا ہے اور اس کو بھی ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے. الصلاۃ، الصلاۃ، ہاں آخر میں ہا کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. الصلاۃ، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں وقف، اوکے. یہ جو اسٹاپ کرنا ہوتا ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں وقف، اوکے. رموز اوقاف، اوکے. اب وقف، اوکے. تو میں اس کو اچھے طریقے سے پہلے اس کے رولز کو سمجھ لیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، الصلاۃ، الصلاۃ، اور ہا لگا دیا تو الصلاۃ. ایک اور اسٹاپ ذہن میں کیا آ رہا تھا، مائنڈ سے اسکپ ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، ہاں یاد آ گیا. اگر کوئی لفظ تجدید پہ اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی لفظ تجدید پہ اینڈ ہو رہا ہے، لیٹ سپوز لاتر کا بننا، کا بننا، لاتر کا بننا، اوکے. اب ہمیں رول تو پتا ہے کہ ہم اس کو ہٹائیں گے اور یہاں پر ساکن لگائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ رول بھی پتا ہے کہ نون جب تجدید کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس میں دو نون ہے نا، ایک جو ہم پیچھے کے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں اور ایک جو ہم ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیٹ مینس اس کے اندر دو نون ہے تجدید کی وجہ سے. تو جب ہم ٹھہرتے ہیں کسی تجدید والے لیٹر کے اوپر تو ہم دونوں نون کو ادا کریں گے، اور دونوں نون کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر ایمفیسائز کر کے رکنا ہوتا ہے. لاتا روکا بننا، اور جب ہم اسٹاپ کریں گے لاتا روکا بن، بن، پورے دو نون ادا کریں گے، دو نون، اوکے. اگر ہم لتر کا بن کر کے اسٹاپ کر دیں گے تو مینس ہم نے دو نون نہیں پڑھے، ایک ہی نون پڑھا. تو یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم تجدید کے لیٹرز پہ رکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ ایمفیسائز کر کے شو کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں دو لیٹرز پڑھ کے رک رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تجوید جو ہم پڑھتے ہیں نا، تجوید، قرآن کو جب ہم تجوید سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم قرآن کو تجوید سے سیکھتے ہیں تو بیسکلی ہم قرآن میں دو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہم اس کے مخارج سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مخارج یعنی آرٹیکولیشن آف دا لیٹرز، کہ کون سا لیٹرز کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ فیٹ ہے، وہ تھن ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پڑھنے کے طریقے کو، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مخارج. یہ پوری کیمسٹری ہے آرٹیکولیشن آف لیٹر کہاں سے نکلتا ہے. لیکن تجوید صرف مخارج کو سیکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ کی ہا کی آواز ٹھیک ہو، آپ کا عین ٹھیک ہو، آپ کا فا ٹھیک ہو، صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ وقف کو سیکھنے کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے. وقف
को सीखने का नाम भी है। तजवीद इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वक्फ एंड मखारिज। ओके, कोई आपसे पूछे आप तजवीद से कुरान क्यों पढ़ते हो, लाइक हमने भी तो कितने सारे आपने पाकिस्तान में भी लोग देखे होंगे और आपने और बहुत जगह में देखे होंगे, वो कहते हैं हमें आता है ऑलरेडी कुरान पढ़ना, हमें तो कुरान पढ़ना आता है। लेकिन जब आप उनका कुरान सुनेंगे तो उनको मद्दा का नहीं पता, उनको लीन का नहीं पता, वहाँ पे वो मिस्टेक बनाते हैं। हम बऊ पढ़ते हैं, वो वो पढ़ के निकलते हैं, ठीक है, वो वो पढ़ देते हैं। तो उनको समझाना होता है कि मखारिज, कुरान को तजवीज़ से पढ़ने का मतलब ये कि हर अल्फाज को उसकी सही जगह से अदा करना, ओके, टू से एवरी सिंगल लेटर फ्रॉम इट्स प्रॉपर आर्टिकुलेशन पॉइंट, और वक्फ यानी औकाफ में माहिर होना, वक्फ में माहिर होना, लाइक आपको हाउ टू स्टॉप अ लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं पता होता कि वो कुरान को पढ़ते वक्त जब वक्फ आता है तो उस पर वक्फ किस तरीके से करना है, हा के लेटर पे कैसे ठहरना है, तनवीन के लेटर पे कैसे ठहरना है, हरकत के लेटर पे कैसे ठहरना है, ये भी एक मिस्टेक में काउंट होता है, ठीक है। और तजवीद इन दोनों को ठीक करने का नाम है। तो अगर कभी कोई पूछे भाई आप कुरान तजवीद से क्यों पढ़ रहे हो, कुरान तो डन हो गया था, दोबारा क्यों सीख रहे हो, या फिर आपको उनको कन्विंस करना है कि आप अपना कुरान ठीक करो, क्योंकि कुरान का ठीक करना वाजिब है, ठीक है। फ़र्ज़ आपको पता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने फ़र्ज़ को तो नहीं छोड़ सकते। फ़र्ज़ अगर छोड़ा तो बहुत बड़ा गुनाह है। फ़र्ज़ के बिल्कुल राइट बिलो आता है वाजिब, ओके, जिसका सीखना ज़रूरी है। नहीं किया वो काम तो फिर उसका गुनाह मिलता है, ठीक है, उसका गुनाह मिलता है। तो कुरान जो है ना वो सीखना वाजिब है। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जब उसका अपना कुरान ठीक हो जाए तो वो किसी दूसरे का भी कुरान ठीक करवाए, क्योंकि कुरान ठीक होना वाजिब है, ठीक है। बाज़ दफ़ा मुझे याद है, मैं अपने मदरसे में जब कुरान पढ़ती थी तो मेरी नानी मुझसे बहुत ज़्यादा बोला करती थी, आप मेरा कुरान सही करवा दो, तुम मदरसे से पढ़ती हो ना, मेरा भी कुरान सही करवा दो। लेकिन जब मैं अपनी नानी को लेके बैठती थी तो बड़े बूढ़े जब अपना पढ़ते हैं तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। तो वो बोलते नहीं नहीं मैंने ऐसे ही तो पढ़ा है, मैं सही पढ़ रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके किसी दिन एक वर्ड बता दिया, किसी दिन एक वर्ड बता दिया, लेकिन अपने घर में भी कोशिश करनी चाहिए कि सबका कुरान आहिस्ता आहिस्ता लेके बैठ के ठीक करा दे। किसी दिन कोई सिर्फ एक हरकत सही करवा दी, किसी दिन मद्दा सही करवा दिया, किसी दिन लीन सही करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब वक्फ के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं सीखने की। एक तो मैंने आप लोग को जैसे अभी बताया कि वक्फ के अंदर आपने अभी सीख लिया कि हरकत पे कैसे स्टॉप किया, मद्दा पे कैसे स्टॉप किया, ठीक है। अगर हाँ, एक और चीज़, अगर लीन के लेटर आ रहा है एंड में, ठीक है, या कोई मद्दा का लेटर आ रहा है, जैसे सॉरी स्वाद स्वाइफ हम पढ़ते हैं ना सूरह के अंदर, वस्वाइफ, ओके। तो जब लीन के लेटर पे एंड हो या मद्दा के लेटर पे एंड हो तो हम स्ट्रेच एंड स्टॉप करते हैं, ठीक है, खींच के स्टॉप करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई और, अच्छा अगर कुरान में मुझे नजर आएगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन लीन के लेटर पर भी हम खींच कर स्टॉप करते हैं, ठीक है। एक ये बात जहन में रखनी है। और वर्फ, हाँ मैं बता रही थी कि वर्फ के अंदर दो चीजें जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। एक तो जो अभी हमने सीख लिया, ठीक है, एक तो जो अभी वर्फ के अंदर हम दो चीजें सीखते हैं, ठीक है। एक जो अभी हमने सीखा कि हरकत पे कैसे स्टॉप करना है, लाइक फतहा दम्मा कसरा आएगा तो कैसे स्टॉप करना है, डबल फतहा डबल कसरा डबल दम्मा आएगा तो हमें कैसे स्टॉप करना होता है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि अगर नून मुशद्दद आता है तो हम, या कोई लेटर, नून नहीं सॉरी, कोई भी लेटर तजवीज़ वाला आता है तो हमें कैसे स्टॉप करना है, हा आता है तो कैसे स्टॉप करना है, ता आता है तो कैसे स्टॉप करना है, ठीक है, हमने ये भी सीखा। अगर लीन लेटर आता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर लीन का कोई लेटर है तो कैसे स्टॉप करना है, ठीक है। अगर मद्दा का कोई लेटर आ रहा है तो हमें कैसे स्टॉप करना है। एक तो ये हो गई, सही है, एक साइड तो वक्त की ये हो गई। दूसरी साइड वक्त की ये है कि कौन सी जगह पे हम ठहरते हैं और कौन सी जगह पे हम नहीं ठहरते, ठीक है। आयत का निशान आता है, हम सबको पता है कि हमें ठहरना है, ठीक है। ये जो कहाँ ठहरना है और कहाँ नहीं ठहरना, इसको कहते हैं रमूज, अरबी में कहते हैं रमूज। रमूज वफ की जमा होती है, प्लूरल होता है औकाफ, ओके, रमूज औकाफ, ओके, रमूज औकाफ, रमूज का मतलब, औकाफ का मतलब वफ की जमा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स कुरान के अंदर हैं जिस पे हम रुक सकते हैं,
हम इस सर्कल निशान के ऊपर रुक सकते हैं, हम पा पे रुक सकते हैं, इसको कहते हैं वक्फे मुतलक। ओके, वक्फे मुतलक, पा लाम का वक्फे मुतलक। ओके, वक्फे मुतलक पे हम रुक सकते हैं। ठीक है, हम जो है वक्फे रमूज पे रुक सकते हैं, जा पे। ठीक है, हम वक्फे जायज़ पे रुक सकते हैं, ठीक है, जीन पर। और हम मजूस पे रुक सकते हैं, वक्फे मजूस पे रुक सकते हैं, मीम पर। ये हमें पता होना चाहिए। ये पॉइंट ऐसे हैं कि जब हम अगर कहीं भी कुरान में रुकें तो हमें इआदा करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इआदा का मतलब होता है पीछे से पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर मैंने रुक गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब लिल्लाह के ऊपर तो कोई स्टॉप नहीं है, तो मैं फिर पीछे से इआदा करूंगी, मैं पीछे से मिला के पढ़ूंगी। अल्हम्दु लिल्लाह, अब मेरी मर्जी में अल्हम्दु से पीछे से मिला लूँ, लिल्लाह से पीछे से मिला लूँ, इसको कहते हैं इयादा। इयादा कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं इयादा। अब रमूज औकाफ क्या होते हैं आपको पता है। हाँ, अगर आप आयत पे रुकते हैं तो आप इयादा नहीं करते, फा पे रुकते हैं यादा नहीं करते, जा पे रुकते हैं तो यादा नहीं करते, जीम पे रुकते हैं यादा नहीं करते, मीम पे रुकते हैं यादा नहीं करते। ये 5 जगहें कुरान में ऐसी हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्लेसेस कुरान के अंदर ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर हम रुकें तो हमें इयादा नहीं करना होता। इसके अलावा आपको कुरान में कुछ भी नजर आए, लाम अलिफ ला नजर आए, या फिर आपको जाल नजर आता है बाज दफा, ठीक है, सौद लाम नजर आता है बाज दफा, और बहुत सारी चीजें नजर। हाँ, खिफ पे हमारी टीचर कहती है कि रुकना चाहिए। ठीक है, खिफ रमूज औकाफ में तो शामिल नहीं है, लेकिन खिफ कहीं लिखा हुआ कुरान में नजर आए तो उस पर भी रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ वक्फा करना होता है। ठीक है, अच्छा, क्यों होते हैं ये रमूज औकाफ और क्या इसके मीनिंग्स हैं, वो फिर इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वक्फ जो है वो 2 चीज़ों का नाम होता है। ठीक है, एक अपने आप को परफेक्ट बनाना कि एक सेकेंड में बता रहा हूँ। ओके, सो हमें ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है तजवीज़ सीखते वक्त। ठीक है, तो हमने बहुत दफ़ा बाकी चीज़ों पे बात की है, वक्त के ऊपर नहीं की बात। ठीक है, तो अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये दोनों पार्ट वक्त के, कि कहाँ हम ठहरते हैं और कहाँ पे हम कौन से लफ्ज़ पे किस तरह वक्त करते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इंशाल्लाह ले ली, ले लिया। ओके, बाकी सब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो इंशाल्लाह याद ले लिए। ले लिया। चलो, अब हम जाते हैं वापस। ये छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो तजवीज़ सीखते वक्त नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो तजवीज़ से कुरान पढ़ रहा हो उसकी नहीं आनी चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश करें कि किसी ना किसी का कुरान सही करवाते रहे। अब आप लोग का अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि मेजर मिस्टेक्स तो आप लोग की नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, सर्कल साइन पे हम रुक सकते हैं। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे तो आ रहा है, हम रुक सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आ रहा है, हम रुक सकते हैं। ये वक्फ़े जायज़ है, ये वक्फ़े मुतलक है, इस पे हम रुक सकते हैं। ठीक है, तो इनको जहन में रखना है, फिर यहाँ इयादा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, रुकने का मतलब ये है कि हमें यहाँ इयादा नहीं करना होता, पीछे से नहीं लौटाना है। ठीक है, अच्छा, हम कहाँ बात कर रहे थे, तगाबुन। ओके, सो ये जो वर्ड है ये तो सूरा का नाम ही है। ठीक है फातिमा, तो इसमें तो मिस्टेक आनी भी नहीं चाहिए। तगाबुन, सूरह तगाबुन पढ़ रहे हैं ना, तगाबुनी तगाबुन। ठीक है, तो अब जिसने भी वक्फ करना है इंशाल्लाह ध्यान से वक्फ करना है, कि रूल को जहन में रखेंगे अगर तो फिर इंशाल्लाह गलती नहीं आएगी। ठीक है, ओके, हिना आप पढ़ लो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, चलेंगे। व मन युमिन बिल्लाहि व यअमल सॉलिहान युकफ्फिर बस यहाँ तक, बस यहाँ तक, बस यहाँ तक। ओके, अब आप पढ़ लो नूर, यहाँ सॉलिहन से यादा करते हुए। युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि व युदखिलहु जन्नतिन स्टैंडिंग पता है ना, जन्नातिन। और नून मुशद्दद भी है, तो जब जीम को मिलाएंगे तो खींचेंगे और फिर दूसरा नून स्टैंडिंग फतह करना, तो पहला नून भी खींचना है, दूसरा भी खींचना है। ठीक है, ठीक।
جنات تجری من تحتها الانہار اوکے یہاں خالی پہ اسٹاپ کر دو. اس کو اسٹاپ کیسے کریں گے؟ ادھر تحتها الانہار. ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے اب آپ یہاں نبی آپ یہاں سے لکھتے یہاں پہ. جی خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. الحمدللہ. اوکے تو لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار خالدین فیہا خالدین فیہا وبئس المصیر. ما أصاب من مصيبة ما أصاب أصاب من مصیبت إلا بإذن الله. إلا بإذن اللہ. اوکے نور آپ یہاں پر دیکھو، یہاں اللہ کا نام اور اس سے پہلے زیر، اس کی وجہ سے یہ گرین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھو باقی سارے ناموں میں گرین کلر اس لیے کہ وہ ہمیں پوائنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو فیٹ کر کے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر یہ گرین نہیں ہے، مینس کسرہ کی وجہ سے ہمیں یہاں باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تین ساؤنڈ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ومن یؤمن باللہ يهد قلبه یہدی قلبہ والله بكل شيء عليم. واللہ بکل شیء علیم. وأطيعوا الله وأطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأطیعوا الرسول. فإن توليتم تولیتم فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو لا الہ الا هو. نہیں، اب ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اوکے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يتوكل المؤمنون. يتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وإن تعفوا فتصفحوا وتغفروا فإن الله وتغفروا وإن الله غفور رحيم. غفور رحيم. إنما أموالكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأولادكم فتنة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ انما اموالکم، بے شک جو منی مال
अमवाल माल से है, ठीक है, माल जो मैं तुम्हें देता हूँ, पैसा जो मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा, कुम प्रोनाउन है, तुम्हारा पैसा, वाओ, एंड औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, ये दोनों चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं मैंने फितना बनाई है। लाइक आजमाइश, फितना का मतलब होता है आजमाइश, आजमाइश का मतलब होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दो चीज़ों से टेस्ट करेगा। कभी औलाद आपके साथ अच्छा नहीं होगी, या औलाद आपके के लिए कभी कभी देखा है ना पेरेंट्स को, बाज दफ़ा वो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपनी अपने किड्स को सेव करने के लिए बाज दफ़ा वो झूठ बोल देते हैं, अपने किड्स को सेव करने के लिए वो बाज जगह मीन हो जाते हैं, अपने किड्स को करने के लिए वो किसी और के साथ बाज दफ़ा जस्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुबह, और बाज़ दफ़ा अपने पैसे के लिए भी ऐसे ही करते हैं, पैसे को कीप करने के लिए, सेव करने के लिए, पैसे की कोई मामला करने के लिए बाज़ दफ़ा मीन हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा जस्टिस नहीं करते, ठीक है, इंसाफ नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि इन नमा, बेशक, श्योरली, अमवालुकुम, योर मनी, व औलादुकुम, एंड योर किड्स, योर चिल्ड्रन, फितना, मैंने खुद फितना बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं ये दोनों चीजें फितना है। बाज दफा क्या होता है कि इंसान कुरान से, या फिर इंसान जो है वो नमाज से, ठीक है, बाज दफा पेरेंट्स अपने बच्चों के कामों की वजह से अपनी नमाज को छोड़ देते हैं, ठीक है, कहते हैं वो बच्चे का ये काम था, मैं इस वजह से थोड़ी सी नमाज मेरी आगे पीछे हो गई, या फिर मुझे बच्चे को ड्रॉप करना था, लेना था, तो मेरी नमाज आगे पीछे हो गई, या मेरा ये वाली चीज थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा उस वक्त मीन हो गई थी बच्चे की वजह से, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि मैंने बनाई ही औलाद और माल दोनों चीजें फितना है। अब ये इंसान का काम है कि वो औलाद में लग के, इन दो चीजों में लग के अल्लाह को ना भूल जाए। बाज दफा क्या होता है, माएँ अपने बच्चों के साथ इतना करती हैं, इतना करती हैं, इतना करती हैं, इतना करती हैं कि बाज दफा उनकी नमाजें भी जाती हैं, उनका कुरान ठीक करना भी जाता है, उनका कुरान को समझना भी जाता है, उनके दूसरे नेक काम जो करने हैं, उनको लोगों के साथ अच्छा मामला करना है, कुछ भी करना है, वो बाज दफा क्या होता है अपने किड्स की वजह से स्किप कर रहे होते हैं, और वो पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि शायद हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि नहीं अभी हमारे किड्स को ज्यादा नीड है। ठीक है, किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो काम तुम पे डाले हैं वो उससे भी जरूरी है, ठीक है। तो कभी भी अपने बच्चों की वजह से भी, बच्चों की मोहब्बत में आके अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ना, और कभी भी पैसे की वजह से, पैसे की मोहब्बत में, या पैसा कमाने के लिए, बाज़ दफ़ा देखो लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो नमाज स्किप कर देते हैं ना अपनी जॉब के ऊपर, खास तौर पे यहाँ पर होता है जुम्मा जा रहा है, नमाज जा रही है, बाज़ लोग कहते हैं नहीं हम आके घर में सारी पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम मान, अगर आप चाहें तो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो उसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, तो क्या है आप उस वक्त अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट अर्निंग अब आपने क्या किया, अपनी नमाज को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। आपकी जॉब, आप ऐसी जगह नहीं जॉब करो जहां पर आपको वो नमाज का टाइम नहीं दे रही, कि आपको नमाज अलाउड नहीं कर रहे, क्योंकि पहले अल्लाह के हुकूक है, पहले अल्लाह के अहकाम जो भी हैं उनको पूरा करना होता है, फिर अपने अपने जो दूसरी चीजें उनको देखना होता है, ठीक है। आप अगर अगर किसी की खिदमत कर रहे हैं, कोई बीमार है, कुछ भी आपका काम है, आपकी नमाज जो अल्लाह ने फर्ज करार दे दी चीजें, नमाज है, रोजा है, हज जिंदगी में एक दफा है, ज़कात अदा करना है साल में एक दफा, ठीक है, ये सारी चीजें, और अल्लाह पे ईमान रखना, तौहीद, ठीक है, ये 5 तो पिलर ऑफ इस्लाम है। ये किसी भी वजह से कोई रीजन आप ना औलाद का दे सकते हैं ना माल का, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बता रहे हैं, और अल्लाह कह रहे हैं अगर इन चीजों का आप ख्याल रखते हो, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम, तो मेरे पास अजर, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है ऐसे लोगों के लिए, बहुत अजीम का मतलब बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने अपनी एंटायर होल लाइफ क्या करना होगा, अपनी औलाद और अपने माल को कभी भी इतना अपने दिल से लगा के नहीं रखना है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। और आप यकीनन जब फ़लस्तीन के सारे जो भी चल रहा है वो देख रहे होंगे, तो इजी तो नहीं है ना इस तरह से अपने अपने किड्स को अपने आंखों के सामने इस तरह से आप डाई होते हुए देखें, या इस तरह से उनका ईमान कितना स्ट्रांग है ना, कितना स्ट्रांग है कि उनको फील भी नहीं होता कि अल्लाह ने हमारे बच्चे हमसे वापस ले लिए, अमवाल, हमारा घर टूट गया, हमारी चीजें जाया हो गई, क्योंकि देखो ये स्ट्रांग ईमान सिर्फ इस एक आयत की वजह से आया है उनके पास,
इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जब कोई चीज उनके पास से जा रही है, उनका घर टूट रहा है। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर वो बता रहे थे 40 इयर्स हमने लगाए इस घर को बिल्ड करने के लिए, और ये पूरा घर भी गया और सारे बच्चे भी गए, सब बच्चे मर गए, लेकिन फिर भी वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, राइट, मेरा ईमान बाकी है। सही है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कुरान में अल्लाह ने बता दिया, ये एक आयत, ये छोटी आयत नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है अपने ईमान को बिल्डअप करने के लिए, कि अल्लाह ने जो घर वापस लिया, अल्लाह ने मुझे टेस्ट किया है, ठीक है, अल्लाह इस दुनिया में मुझे टेस्ट कर रहे हैं उसको वापस लेकर। अल्लाह ने जो मेरी औलाद वापस दे दी, मेरे बच्चे वापस दे दिए, तो अल्लाह ने खुद कहा है कि वो तो फितना है, मैं तुम्हें उन दो चीज़ों से मैं टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे टेस्ट कर रहे हैं, और अल्लाह ने इसके बदले में, अल्लाह ने इसके अगेंस्ट में जो मुझे अजर देना है, जो मुझे रिवॉर्ड देना है, वो बहुत बड़ा है। इसी वजह से आप अगर वीडियोस देखो तो आपको सुनने को मिलेगा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व अलैहि रब्बुल अर्शिल अज़ीम, राइट, कि हमारा सारा तवक्कुल, हमारी सारी आइज टुवर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लाइक हमने दे दिया, आपने हमसे हमारी औलाद मांगी, हमारे बच्चे मांगे, शहीद हो गए, हमने दे दिया, हमसे हमारा घर छीन गया, लेकिन घर टूट गया, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा वो सारा रिवॉर्ड जो आपने ये हमें टेस्ट किया है, इसके बाद हमें जन्नत में बड़ा करके मिलेगा, बहुत बड़ा, जैसा घर था उससे बहुत अच्छा, जितनी औलाद थी उससे बहुत अच्छी औलाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बेहतर रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी आयत नहीं, ये बहुत बड़ी आयत है, और ये बड़ी समरी है लाइफ की, कि ये दो चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को हमेशा टेस्ट करते हैं, कभी ख़राब औलाद दे के जो बदतमीज़ होती है, कभी औलाद को लेकर, कभी औलाद को कोई बीमारी देकर, कभी पैसा बहुत ज़्यादा देता है अल्लाह, तो भी टेस्ट करता है कि आप कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो, और कभी छीन लेता है और देखता है कि आप कंप्लेन तो नहीं कर रहे अल्लाह से कि मेरा ही क्यों ले लिया, इतने सारे और लोग थे, पूरा घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे छीन लिया ना, पूरी पूरी बिल्डिंग उनकी गिर गई, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर इत्मीनान है। क्यों? क्योंकि उनका कुरान पे ईमान इतना पक्का है कि उनको पता है अगर अल्लाह कह रहे हैं वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इससे बेहतर, क्योंकि ये एक ही आयत है। देखे, अभी मैं आपको बता रही थी ना कि ये ता जीम क्यों होता है, ये मैं कभी समझाऊंगी। एक पार्ट यहाँ खत्म हो रहा है, इस वजह से ये तौर डाला जाता है कि पता चले कि एक जुमला, एक सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरा सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये है पूरा एक ही, इट्स जस्ट लाइक अ कॉमा, ओके, ताकि पढ़ने वाले को ट्रांसलेशन सही से समझ में आ जाए। तो दिस तौर वर्क्स लाइक अ कॉमा, ओके। तो एक सेंटेंस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं मैं तुम्हें इन दो चीज़ों से टेस्ट करूंगा, और दूसरे उसी का दूसरा जो पार्ट है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अगर ऐसा टेस्ट मैंने किया तो उसके बाद अगर तुम साबित कदम रहे, स्टेडी फास्ट रहे, तो फिर अजर भी बहुत बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तौर जो है जस्ट लाइक ए कॉमा बिटवीन टू सेंटेंस, इफ यू ट्रांसलेट, ओके, इंशाल्लाह। सो लेट्स आगे जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम मस्ततअतुम वस्मउ व अतीउ वस्मउ व अतीउ أنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح ومن ومن يوق شح شح نفسه نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله تقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والله شكور حليم. عالم الغيب عالم الغيب والشهادة والشهادة العزيز الحكيم. العزيز الحكيم.
अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सूरह तगाबुन। इसको इंशाल्लाह हाँ स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्क्रीनशॉट आप ले लो। नाइन से था ना? अच्छा यहाँ से ले ले पहले। मैं इसको छोटा कर देती हूँ। यहाँ से ले ले पहले। ले लिया फातिमा स्क्रीनशॉट? नबिहा और नूर आपको स्क्रीनशॉट की तो जरूरत नहीं है, लिंक आप अपने पास सेव कर लो। ले लिया। ये लोग यूज टू हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यहाँ से ले लिया। एक मिनट, ले ली यहाँ से ले ली। एक सेकंड। यहीं से ही था ना, 9 से था ना आपका लेसन? हाँ 9 तक था। ठीक है ले लिया। ले लिया। ओके इंशाल्लाह। अच्छा मेरा ना थर्सडे को टेस्ट है, मेरा एग्जाम है, तो थर्सडे को मैं क्लास नहीं लूंगी, लेकिन थर्सडे की क्लास इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को ले लूंगी, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे मेरा फिर उसके बाद मंडे को टेस्ट है। ओके तो मैं थर्सडे की जगह में इंशाल्लाह फिर फ्राइडे क्लास लूंगी, ठीक है? तो थर्सडे अब ऑनलाइन नहीं आना है ओके। और फिर फ्राइडे ऑनलाइन आना है, ठीक है? सेम टाइम पे भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सही है, ठीक है? तो वेडनेसडे और थर्सडे टाइम मिलेगा याद करने के लिए ना? हाँ मेरा थर्सडे को एग्जाम है, तो फिर मैं थर्सडे, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, तो लाइक थर्सडे फिर मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। जब तो हमारी सूटें भी जो है वो आपने जो दी है ना पूरी, वो याद तो हो जाएगी पक्का 2 दिन हाँ में। तो अब आप लोगों ने आपकी जो सूरे हैं वो अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है? नबीहा आप भी एक दफ़ा अपनी सारी सूरे रिवाइज कर लेना, ताकि फिर ये लोग तो मेरा ख्याल आप लोगों से आगे हैं सूरे के अंदर। मेरा ख्याल ये लोग सूरह कदर याद कर रहे हैं अभी, तो सूरह यस कदर आप इंशाल्लाह याद कर लेना, ताकि आपका अब आगे रमज़ान भी आ रहा है। और मुझे याद दिलाना, अब हम रमज़ान का थोड़ा सा अब जो थर्सडे क्लास होती है उसमें रमज़ान की इंशाल्लाह हदीसें शुरू करेंगे, ठीक है? ताकि एक दफ़ा उसको ओके सही रिवाइज कर लें रमज़ान से पहले, तो थोड़ा रमज़ान जब एंटर होते हैं रमज़ान में तो हमको थोड़ा सा उसका व्यू होता है जहन में कि हाँ रमज़ान वो मार्च या फिर अप्रैल में बोले शायद होगी। मार्च में थोड़ी, हाँ मार्च में है ना, 10 9 या 10 से रमज़ान है, like अब मार्च या फिर अप्रैल में बोले ना रमजान स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल नहीं है, मार्च। मार्च आई थिंक 10th, मार्च 10th है ना। सिर्फ 1 मंथ ही है, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जिसमें हम इंशाल्लाह थोड़ा सा रमज़ान को भी चीज़ों, रमज़ान की चीज़ों को, दुआओं को, सबको रिव्यू कर लेंगे, ताकि इंशाल्लाह रमज़ान आने के टाइम आप लोग को रमज़ान का जो है वो थोड़ा सा एक बिल्कुल अलर्ट रहे कि हाँ रमज़ान है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुब्हान रब्बिका अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा वो फातिमा मुझे दुआ मुझे करना है कि मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, मुझे इतना डर लग रहा है अपने एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा दुआ करना कि मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक जी ठीक है। है? ओके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज फातिमा। हिना कुछ पूछना है आपको? हाँ वो पूछना था कि आपने कौन कौन सी सूरत दी थी याद करने के लिए? सूरह कदर चल रही थी ना? हाँ सूरह कदर यस अच्छे से रिवाइज कर लेना, और 3 और सूरह सब रिवीजन वही है पे ना। दी थी पीछे से। फर्स्ट 3 तो हो गई थी, उसके बाद की 3 अब करनी है, ठीक है? पूरी क्लास तक तो हो गई थी। हाँ 3 हो गई थी, तो टोटल सूरह नास से गिनकर 6 सूरह अपनी रिवाइज कर लेना है, ठीक है? ओके सही और है। सूरह कदर पक्की करनी है। और फातिमा आपको मैंने सूरह बैजिना भी दी है, राइट? हाँ याद हो गए 4 याद हो गई, तो फिर आगे की 2 3 या 4 नहीं, अब तो ज्यादा दिन का हॉलिडे आ रहा है आपके पास, तो आप कम से कम 5 6 आयत और याद कर लो, ठीक है? ठीक है फातिमा? ओके। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।